Hi, good evening, wonderful souls. I hope you are having a blessed time. I am your host, Dr. Rohit Bansal, and welcome to the podcast Chill Out Kiddo Easing Exam Stress for Kids. I received a number of requests from our listeners that I should organize a podcast on this sensitive topic since a number of students do face the difficulty of exam stress. So, in order to cover this topic, and today we are having two guests with us. I would like to welcome first Payal Gupta. I have already done two podcasts with her, which have been very good and effective. She is a psychologist, speaker, educator, researcher, certified parenting coach, and mindful practitioner. Thank you so much, ma'am, once again. And you are every time sparing invaluable time whenever I invite you for the podcast with me. Thank you once again. Thank you, sir. Thank you. Thank you for this introduction and this wonderful opportunity. Yeah. Thank you, sir. We are having one more guest with us for the very first time, Simona George. She is an educator, speaker, DMIT practitioner, graphologist, and art therapy practitioner. She has organized a number of workshops and participated as a resource person in number of events. Thank you once again, ma'am, for accepting my invitation and being part of this podcast. And I am hopeful that we will have an engaging conversation which will be helpful for the kids and parents. Over to you. Thank you so much, sir, for this warm introduction. I'm truly honored to be a part of this enlightening discussion. This is my first time with you, and exam stress is an issue that affects not only just children, but I think the entire family. So, as a parenting coach, I think this is deeply personal for me also, that, because I believe that children deserve the opportunity to learn and grow in a stress free environment. Yes. So, together through this discussion, I hope we share strategies that empower not only children but also their parents to handle this exam pressure with grace and confidence. मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एग्जाम स्ट्रेस के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं? कैसे पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस बच्चे में ना एग्जाम स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं, ये पैनिक करता है? बिल्कुल। एक्चुअली एग्जाम्स हर लेवल का होता है। 10th से मेन हम 10th को कंसीडर करते हैं, 10th 12th, देन एंट्रेंस एग्जाम्स एंड फर्दर एग्जाम्स। सो नो डाउट हमारी सीट्स लिमिटेड होती हैं, एस्पिरेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो एक परफॉर्मेंस एंजाइटी तो होती है, दैट इज़ ओके। बट प्रॉब्लम तब आती है जब वो परफॉर्मेंस एंजाइटी सिर्फ वहाँ तक न रह के उसके सिम्टम्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं, और बच्चे समटाइम्स दे आर हैविंग नेगेटिव, उनके जो बिहेवियर है वो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स चेंज हो जाते हैं, दे आर हैविंग मूड स्विंग्स, ठीक है, या वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं। अगर आप उन्हें कुछ समझाना चाह रहे हैं या कुछ भी बात करना चाह रहे हैं, दे आर वेरी इरिटेट, या उनका जो स्लीप रूटीन है वो एकदम चेंज हो चुका है, या तो वो हद से ज़्यादा सो रहे हैं, मतलब एक 7 to 8 आवर्स की नैप इज़ एसेंशियल फॉर अ चाइल्ड, वो उससे ज़्यादा सो रहे हैं, या फिर दे रियली डोंट वांट टू स्लीप, मतलब जब भी वो सोते हैं उनको लगता है कि मेरा वो चैप्टर रिवाइज जो किया है वो अभी बचा है, या कुछ भी उन्हें फियर होता है एंड दे आर नॉट एबल टू स्लीप, ये कंडीशन है। या फिर दे आर हैविंग सम फिजिकल प्रॉब्लम एज वेल, जैसे उनको हेडेक, फ्रीक्वेंट हेडेक्स हो रहे हैं, या उनको शिवरिंग हो रही है, या वॉमिटिंग सेंसेशन हो रही है उनको, या दे आर नॉट एबल टू ईट। कुछ बच्चे होते हैं एकदम भूख खत्म हो जाती है, एंड सम आर, उनको पढ़ने बैठते हैं 1 or 2 लाइन्स दे हैव रेड और अगेन आई एम हंग्री, वो उनके लिए एज अ कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है, उनको लगता है खाने से उनका स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी हैं चीज़ें जब पेरेंट्स को थोड़ा सा नोटिस करना चाहिए कि थोड़ा भी अगर बच्चे का इस टाइप से बिहेवियर एबनॉर्मल हो रहा है, या बच्चा सेल्फ डाउट कर रहा है, उसको लग रहा है कि मैंने कल तो चैप्टर सारा रीड किया था, टुडे आई एम नॉट इन पोजीशन टू रिकॉल एनीथिंग, मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, मैं कल एग्जाम कैसे लूँगा, हाथ पैर एकदम नम हो गए हैं, तो दीज आर द, बच्चे में अचानक गुस्सा भी आना स्टार्ट हो जाता है, हाँ, वही without any इरिटेशन, reason. मूड स्विंग्स होते हैं, हाँ, mood एग्जैक्टली, swing होता है, बिल्कुल। स्लीप डिसऑर्डर आई थिंक होता दीज है। आर, हाँ, Yes, दीज आर yes. द थिंग्स जिसमें
थोड़ी बहुत पेट में बटरफ्लाई ये सब तो नॉर्मल है, Right, वो तो right. परफॉर्मेंस के लिए सबको होती है, तो हाँ. इट्स नॉट टू वरी। बट हाँ, जब बच्चा नहीं सो पा रहा है या कुछ भी इस तरीके से, तो देन नींद ना आना, देयर भूख आर ना लगना, ये कुछ मेन सिम्टम्स हैं जिससे जी आइडेंटिफाई हो सकता है कि हाँ, ही और शी इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। यस करेक्ट। सीमा मैम, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? तो एज पायल ने बोला कि बहुत से बिहेवियरल साइंस है जिस जो उन्होंने मेंशन किया कि भूख ना लगना एंड ऑल। फिजिकल सिम्टम्स भी है, जैसे कि सिर दर्द, पेट दर्द। ऑल्सो आई से कि कॉग्निटिव इश्यूज, पढ़ाई में ध्यान या ध्यान ना दे लैक ऑफ पाना, कंसंट्रेशन या या यस, या बार बार भूल जाता है जो पढ़ते हैं। नो कभी कभी बहुत ही थॉट में रहते हैं वो लोग, लॉस्ट हो जाते हैं। तो वो भी आई फील सर्टेन काइंड ऑफ सिम्टम्स। ऑल्सो इमोशनल सिम्टम्स, कि बहुत ज्यादा गुस्सा करना या बहुत एकदम से रो पड़ना, these kind of symptoms also happen with children. So these are certain things like behavior, physical, cognitive and emotional जो changes दिखते हैं, so you should be alarmed about it और आपको action लेना चाहिए उसके लिए। एग्जाम स्ट्रेस का किड्स की इमोशनल और मेंटल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट आता है? यस पायल मैम। किड्स की मेंटल हेल्थ, जैसे मूड स्विंग्स की हमने बात की, इरिटेशन उनका बढ़ जाता है ना। और इफ आई टॉक अबाउट फूड हैबिट, वो उनके चेंज हो जाते हैं। मेंटल हेल्थ, दिस आल्सो कम्स अंडर दिस, कि हाँ, हिज चाइल्ड इज नॉट एबल टू ईट प्रॉपर्ली। देन यस, सेल्फ डाउट, नेगेटिव थॉट्स उनको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बढ़ जाते हैं। देन they always feel like कि मेरे को कुछ याद ही नहीं हो रहा है, and nobody is trying to understand me, and of course performance issues तो रहते हैं, anxiety होती है बच्चों को। then they want कि कल मैं पेपर ना देने जाऊँ या फिर ना। in fact I was having one case जिसमें बच्चे ने मुझे जस्ट एग्जाम से पहले CUET का उसका पेपर था, इको का, ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड कि मैम मुझे बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही है एंड आई एम नॉट एबल टू राइट द एग्ज़ाम। मुझे ऐसा लग रहा है मैं एग्ज़ाम सेंटर तो मैं पहुंच गया हूँ, बट आई डोंट वांट टू गो इन, कि मुझे एग्ज़ाम लिखना है। तो उस समय आप फ़ोन पे मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझा सकते, लेकिन हाँ, मैंने उसको कुछ कामिंग एक्सरसाइज, मैंने बोला बेटा जस्ट बी विद यू, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, आप डीप ब्रीथ करें, एक बार आइज क्लोज करके डीप ब्रीथ करें 4 सेकेंड्स के लिए। मैं पहले भी उसे सिखा चुकी हूँ, बॉक्स ब्रीदिंग हम कहते हैं, जो उस समय क्या होता है कि दिमाग में कुछ और नहीं आता, क्योंकि आपका सारा ध्यान बॉक्स ब्रीदिंग पे होता है। सो 4 सेकेंड के लिए ब्रीथ इन करेंगे, देन 4 सेकेंड्स आपने होल्ड करना है, होल्ड किया, देन आपने 4 सेकेंड्स के लिए ब्रीथ आउट किया, देन 4 सेकेंड्स के लिए आप ब्रीथ को होल्ड करेंगे। सो दिस वे पूरा बॉक्स ब्रीथ, आपका ध्यान एक्चुअली पूरा माइंड में ना उस बॉक्स को बनाने में ही चला जाता है, पूरा ध्यान वहाँ पर होता है। तो जो फियर है, जो एंशियस एटीट्यूड आप शो कर रहे हो, दैट वैनिश हो जाता है। एक या 2 बार आप करते हैं। तो ही डिड द सेम प्रैक्टिस एंड ही वाज सो काम। पॉजिटिव कुछ एफर्मेशंस जो मैंने उसको पहले भी बताई थी, ही रिपीट दोज एफर्मेशंस, तो ही वाज एबल टू राइट द एग्जाम प्रॉपर्ली। एक्चुअली जब बच्चा स्ट्रेस लेता है एग्जाम का, तो ऑटोमेटिकली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है मेंटल हेल्थ पर भी और इमोशनल हेल्थ पर भी, और वो थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता। उसको एक फियर ऑफ फेलियर रहता है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन केस इफ आई एम नॉट एबल टू सक्सीड, देन व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस। मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मेरा सोशल सर्कल क्या बोलेगा, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे। तो वो फियर ऑफ फेलियर है ना, उसको उस स्ट्रेस को बहुत इंक्रीज कर देता है। और अगर उस केस में पेरेंट्स उसको अच्छे से काउंसलिंग करेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे, तो मे बी वो उस पीरियड को अच्छे से ले पाएगा। मीन्स आपको अपने एग्जाम डेज को भी एंजॉय करना पड़ेगा, तभी आप लर्निंग भी होगा और आप फोकस भी कर पाओगे। नहीं तो फिर हर दिन इतना तनावपूर्ण रहेगा आपका कि आपके लिए एक एक दिन निकालना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन से भी जूझ रहे होते हैं एग्जाम डेज के दौरान। ऐसा नहीं कि उनको काम नहीं आता, वो they might be good in the studies but they are not able to cope up with the situations. Right. Yes सिमोना मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसे क्या कॉजेज हैं, ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये बच्चों में एग्जाम स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है?
एग्जाम स्ट्रेस के कारण को समझना आई थिंक समस्या का हल निकालने के लिए पहला कदम है। पहला कदम। एंड द मोस्ट एज यू मेंशन्ड आल्सो के पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, Yeah. माता पिता की उम्मीदों पर बच्चों का भारी दबाव पड़ने लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेरेंट्स बहुत कैजुअली बोल जाते हैं कि इस बार तो तुम्हें क्लास में पहला नंबर ही लाना है, राइट? सो पेरेंट्स ये समझ नहीं पाते कि ये एक लाइन बच्चे के मन पे कितना ज्यादा दबाव ला सकता है। द एक्सपेक्टेशंस दे हैव फ्रॉम देयर चाइल्ड, प्रोबेबली इवन इफ द चाइल्ड इज बहुत अच्छा भी है पढ़ाई में, पर वो एक लाइन इतना दबाव डाल देता है कि जो पढ़ा हुआ हो वो भी कभी कभी बच्चे भूल जाते। वी गेट दैट काइंड ऑफ चिल्ड्रन आल्सो हु अप्रोच अस दैट वी हमको याद तो था पर एग्जाम के टाइम पे भूल गए, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है उनको। तो इन जैसी बातों का बच्चों के मन पर वो दबाव डल सकता है। Another thing I'll say is fear of failure. बच्चे ये सोचते हैं कि अगर वो असफल रहे तो उससे उनके से पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस जो हमने बोला, या आजू बाजू वाले या उनके जो रिश्तेदार होते हैं उनके एक्सपेक्टेशंस कि हाँ ये तो हर बार फर्स्ट लाता है तो इस बार क्यों उसका कम आया, या फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हो तो उससे भी एक कंपैरिजन बन के रहता है। इवन टीचर्स के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तो ये जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो एक फियर ऑफ फेलियर बिल्ड करता है बच्चे में। उससे उनको बहुत निराशा भी, दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ दिस आल्सो, निराशा भी। एंड कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर भी, जो मैंने मेंशन किया, पीयर प्रेशर, दोस्तों का प्रभाव के मुझे तो इतने मार्क्स मिले, तुझे कितने मिले, सो दैट आल्सो कहीं ना कहीं बिल्ड करता है अ कॉज ऑफ द स्ट्रेस। द लास्ट जो मैं बोलना चाहूंगी इज ऑल्सो लैक ऑफ प्रिपरेशन। उसे हमें नहीं भूलना चाहिए कि कभी कभी बच्चे प्रिपेयर करते हैं लास्ट मिनट, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, या पुअर टाइम मैनेजमेंट की वजह से भी एक पैनिक मोड डेवलप होता है लास्ट मिनट। तो इससे भी एक स्ट्रेस बिल्ड हो जाता है जो उनको अफेक्ट करता है। तो मैं कहूंगी कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल लेके आगे बढ़े, rather than लास्ट मिनट वेट करना या प्रोक्रेस्टिनेट करना कि कल हो जाएगा, अभी तो टाइम है, एग्जाम आने वाला है, सो आई विल डू इट जब टाइम आ जाएगा तब। सो उसके लिए सिर्फ बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आई थिंक इवन द पेरेंट शुड सपोर्ट द चाइल्ड कि पहले उसको वो स्ट्रक्चर दिखाए कि दिस आर द पॉसिबिलिटीज, तुम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। तो बच्चे को भी प्रोत्साहन मिलती है कि ओके मम्मी पापा मेरे साथ है तो मैं आगे कर सकता हूँ ये चीज। अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, पेरेंट्स को बच्चों के प्रयासों को अप्रिशिएट करना चाहिए, सराहना चाहिए, ताकि सिर्फ उनके परिणामों पे ना ध्यान दे के उनके एफर्ट्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दे, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो ओपन कम्युनिकेशन आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों के साथ बात करना कि कहाँ उनकी डिफिकल्टीज है, कहाँ उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या कहाँ उनको उनका साथ चाहिए। समटाइम्स ओनली अ स्मॉल अप्रिसिएशन के आप अच्छा कर रहे हो, ओ यू फिनिश्ड वन चैप्टर, वाओ वेरी गुड, टेक अ ब्रेक फॉर 5 minutes देन कंटिन्यू। इतनी छोटी भी बात बच्चे को बहुत प्रोत्साहन देती है कि ओके आई शुड डू बेटर, आई शुड प्रिपेयर बेटर। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स जो पेरेंट्स कर सकते हैं बच्चों के लिए, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प चिल्ड्रन टू डू बेटर। यस, राइट। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है बच्चों की ठीक से काउंसलिंग करने में, और जितना वो उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, एक्सपेक्टेशंस उनसे ज़्यादा लगाएंगे, उतना ही बच्चा पैनिक ज़्यादा करेगा। ठीक है ना? उनके ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर ना डालें और फिर रिजल्ट अच्छा आता है, देन इट विल बी आइसिंग ऑन द केक। यस पायल मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट का कितना बड़ा रोल है इस एग्जाम स्ट्रेस को कोप अप करने में? मुझे ऐसा लगता है कि सारा गेम जो है वो टाइम मैनेजमेंट का है। यहाँ अगर हम टाइम मैनेजमेंट की जगह माइंड मैनेजमेंट कहें तो वो भी गलत नहीं होगा। इन टुडेज सिनेरियो किड्स आर सराउंडेड विद फेसबुक, सोशल मीडिया साइट्स जो भी हैं, सो दे आर हैविंग लॉट ऑफ नोटिफिकेशंस ऑल्सो। सो आई ऑलवेज सजेस्ट अ टेक्निक एज पोमोडोरो टेक्निक। उसमें क्या है कि 25 मिनट्स का, सपोज आपने जो भी पढ़ना है
ठीक है। अगर मैं 1 घंटे का सेशन लगाती हूँ तो उसमें क्या थोड़ा सा हम प्रोक्रास्टिनेट कर लेते हैं कि थोड़ा सा चलो चैट देख लिया या थोड़ा कुछ कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ दैट आई यूज टू से कि आप मतलब पूरा 1 घंटे का सेशन ना लगा के आप पोमोडोरो टेक्निक यूज करें। 25 मिनट्स का आप एक सेशन लगाओ एंड माइंडेड कि 25 मिनट्स मतलब 25 मिनट्स में आपने टाइमर लगा लिया, आप अपना पढ़ रहे हैं, उस समय यू आर नॉट सपोज टू चेक एनी नोटिफिकेशन। आपके पेरेंट्स को भी ये चीज़ पता होगी तो दे विल ऑल्सो नॉट कॉल यू एट दैट टाइम। कोई फ़ोन आया, कुछ भी आया, मीन्स 25 मिनट्स मीन्स कि आपने जस्ट 25 मिनट्स पढ़ना है। एंड आफ्टर दैट आपने वो सेशन किया, आफ्टर दैट टेक 5 मिनट्स ब्रेक, देन अगेन 25 मिनट्स का सेशन आपने करना है। अभी जो 5 मिनट्स का ब्रेक है, इट मीन्स कि आप उस 5 मिनट्स में थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम्स में ना हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Right. आप पानी अगर नहीं पी रहे हैं तो रिटेंशन मेमोरी की थोड़ी वीक हो जाती है। आपने पानी पिया और कुछ मंचिंग किया, अगर इफ़ यू वांट, देन आप वॉशरूम जा रहे हैं, कुछ भी, मतलब 5 मिनट्स मीन्स 5 मिनट्स। आफ्टर दैट अगेन आपने 25 मिनट्स का सेशन लिया, देन 5 मिनट्स ब्रेक, देन 25 मिनट्स। इस टाइप से आप जब 4 सेशन बैक टू बैक करते हैं, उसके बाद आप आराम से हाफ एन आवर का ब्रेक ले सकते हैं। नाउ यू विल रियलाइज कि ये जो आपने 4 पोमोडोरो का जो 4 सेट आपने अरेंज किया है, इसमें आपकी प्रोडक्टिविटी एकदम मैजिकली इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज कोई नोटिफिकेशन नहीं था, कुछ नहीं था। और जो अभी आपने हाफ एन आवर का ब्रेक लिया, ठीक है, उसके बाद आप अगेन अपना सेशन करते हैं, आप वो सारा रिवाइज अगर आप करोगे, यू विल फील कि मैंने जितना भी पढ़ा था वो सब कुछ एकदम मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ। Right. मेरे को एकदम लर्न हो गया। रिविजन एंड ऑफ द डे में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे लर्न कर लेते हैं एंड रिवाइज अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है तो वो माइंड में रहता नहीं है। So as you talk about time management, तो of course this is very important tool. Again दूसरा क्या, बच्चे क्या करते हैं कि इनिशियली तो दे आर इन वेरी जोश, तो वो टफ सब्जेक्ट एक साथ उठा लेते हैं एंड आफ्टर डूइंग 1 or 2 आवर सेशन उनको लगता है कि अब तो मैं थक गया, या अगर वो नहीं कर पा रहे हैं दे फील वेरी नेगेटिव अबाउट देयर परफॉर्मेंस। सो यहाँ पेरेंट्स का भी रोल है कि अगर बच्चा ठीक से नहीं मैनेज कर रहा है टाइम को या सब्जेक्ट्स को एलोकेट नहीं कर रहा है, तो यू नीड टू सजेस्ट या गाइड देम कि एक सब्जेक्ट टफ लिया अगर, बिकॉज सबकी ना पढ़ने की जो कैपेसिटी है वो थ्रू आउट द डे डिफरेंट होती है। मॉर्निंग में कोई बच्चा फ्रेश होता है, कोई बच्चा आफ्टरनून में फ्रेश होगा, कोई नाइट में फ्रेश है। सम आर नाइट आउल्स की रात को ही बैठ के पढ़ना है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं किस समय पढ़ सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू सेट योर टाइम टेबल, राइट। आपने सेट किया कि मॉर्निंग में मैं बहुत फ्रेश होता हूँ तो आई विल डू मैथ्स। उसके बाद मैथ्स का एक टफ सब्जेक्ट लिया, देन आपने थोड़ा इंग्लिश का, लिटरेचर का या ग्रामर का कुछ इजी सब्जेक्ट होल्ड कर लिया, देन अगेन आपने ब्रेक लिया, देन यू कैन चूज 1 टफ सब्जेक्ट, राइट। दिस वे आप अपना टाइम टेबल भी सेट कर सकते हैं। एंड एग्जाम डजंट मीन्स कि आप उसमें कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए मत डालें या प्लेफुल एक्टिविटी ना डालें, बशर्ते प्लेफुल एक्टिविटी नीड नॉट टू बी ऑन फोन, क्योंकि आपको माइंड ऑक्यूपाई, आप फोन में वापस से पबजी या कुछ और खेल रहे हो तो इट डजंट मीन कि इट विल गिव यू रिलैक्सेशन। इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू आर गोइंग टू द टेकिंग स्मॉल राउंड इन द पार्क, या फिर आप बाहर ही चले गए या कुछ भी आपने इस टाइप की एक्टिविटी की, या अपने फ्रेंड से बात कर ली आपने, तो दैट विल गिव यू मोर रिलैक्सेशन। राइट। यस सीमा मैम, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? Very rightly said. Pomodoro technique जो है that is one of the best that we offer children nowadays, और ये बहुत वर्क भी कर रहा है बच्चों पे, and I think not only children but adults भी अगर इसको करें तो बहुत हेल्प करता है। Another thing जो मैंने बोला था, structured timetable, you know you can make colorful timetables for kids to follow, और बहुत ही जैसे मैम ने बोला कि you know पहले अगर आप हार्ड ले रहे हो सब्जेक्ट तो देन फॉलो इट अप विद अ माइल्डर सब्जेक्ट, ताकि वो मोनोटनी भी ना रहे और बच्चे बने भी रहे पढ़ाई में। एंड ब्रेक शुड बी नॉट एंटरटेनमेंट ब्रेक्स का मतलब ये नहीं होता है कि फोन टीवी, क्योंकि फिर से वो बच्चे को एंगेज ही कर रहा है, माइंड को एंगेज कर रहा है, तो आप फिर से उनके मन पे तनाव ही डाल रहे हो, स्ट्रेस ही डाल रहे हो बाय गिविंग देम डिजिटल एंटरटेनमेंट।
सो बेटर देन दैट इज अ नेचर वॉक और रिलैक्सेशन, योगा भी कर सकते हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. दोस 5 minutes ऑफ ब्रेक शुड बी प्रोडक्टिव फॉर देम. तो ये आई थिंक इट्स नॉट इजी टू फॉलो, बट जब बच्चा खुद करेगा ये 2-3 बार तो उसे भी रियलाइज होगा कि हाउ इट इज हेल्पिंग देम टू बी मोर प्रोडक्टिव. सो यस, वेरी वेल पुट बाय पायल मैम. एंड रियलिस्टिक गोल सेट कीजिए. यू नो, टाइम टेबल तो बना लेते हैं बच्चे, पर लगातार सारे सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं. पेरेंट्स भी बोलते हैं कि हाँ आज ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, पर वो रियलिस्टिक नहीं होता है, क्योंकि बच्चे की कैपेसिटी क्या है, बच्चे का कितना कर सकता है दिन में. रियलिस्टिक गोल सेट कीजिए. अगर आप कम से शुरू कर रहे हैं तो आई थिंक समवेयर 5 minutes से शुरू करेंगे तो 30 minutes तक पहुंचेगा बच्चा. तो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस रखिए, पर प्रोडक्टिव रखिए वो चीज को. इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. बिल्कुल सही इनपुट्स दिए आप दोनों ने. इसी में मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा. बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं, और जैसा सिमोना मैम ने बोला कि स्ट्रक्चर टाइम टेबल भी होता है, बट उस टाइम टेबल पे एक दिन अमल करते हैं, 2 दिन करते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं. तो इसका तरीका क्या बनता है कि आप उस टाइम टेबल को, जो आपका रीडिंग स्पेस है, वहां पे वॉल पे आप लगा दो, जिससे कि वो आपकी आंखों के सामने रहे, और आपको पता हो पूरा दिन जैसे जैसे टाइम पास ऑन होता है, आपको पता हो कि किस टाइम पे आपको कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है. होता है क्या है कि जैसा मैम ने कहा कि मॉर्निंग में एनर्जी लेवल हाई होता है, तो आप पूरी एनर्जी अपना लगा देते हैं, और जैसे ही दिन बीतता है तो जो आपके शाम वाले काम होते हैं वो आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप टायर्ड फील करते हैं, और बच्चे थोड़े से उतने इमेच्योर होते हैं तो वो उतना डेडिकेटेडली काम नहीं कर सकते. तो होगा क्या कि या तो वो एक सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, जो मैम ने कहा कि बहुत टफ सब्जेक्ट है. लाइक मोस्टली बच्चे मैथमेटिक्स को फोबिया समझते हैं, तो मैथमेटिक्स को या तो बिल्कुल कवर नहीं करेंगे, या केवल उसी को करेंगे, बाकियों को एग्जाम टाइम पे करेंगे. जैसे कि पेरेंट्स के लिए सभी बच्चे जैसे होते हैं, तो ये बच्चों को भी समझना होगा कि मेरे लिए सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है. एक में तो आपने 95 गेन कर लिया और बाकियों में आपका 60 क्रॉस नहीं हुआ, तो एवरेज कितना रहा. और ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि वो एक सब्जेक्ट में तो बहुत प्रोफिशिएंट है, कि उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, इंग्लिश में उसका 95 आ गया, लेकिन मैथ्स में वो 50 पे रह गया. तो ही नीड टू पे इक्वल वेटेज टू ऑल द सब्जेक्ट्स, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव द स्ट्रक्चर टाइम टेबल. और वो आपके साथ 24 आवर्स रहना चाहिए. स्कूल में जा रहे हो तो पॉकेट में रखो, घर में आप पढ़ रहे हो तो आपके सामने वॉल पे वो लगा होना चाहिए, और साथ में आप कुछ मोटिवेशनल कोट्स प्लेस ऑन कर दो कि आई विल डू इट. तो वो आपको टाइम टू टाइम पैम्पर करता रहेगा. तो टाइम टेबल नहीं है तो फिर कुछ नहीं है. और मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, एक इंटेलिजेंट बच्चे और एवरेज बच्चे में क्या डिफरेंस होता है. हो सकता है कि जो एवरेज बच्चा है उसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी हो, बट वो उतने अच्छे तरीके से शेड्यूल्ड वे में काम को नहीं करता. आज पढ़ लिया तो सुबह शाम तक पढ़ता रहा, फिर 1 वीक के लिए काम ही नहीं किया. ऐसे बहुत बच्चे नोटी होते हैं, तो फिर वो पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं. और दूसरा इसमें क्या करें, यू नीड टू मेक ए प्रायोरिटी ऑफ द टास्क. आप उनको रेटिंग्स दो कि सबसे जो इम्पोर्टेंट टास्क है उसको सबसे पहले मॉर्निंग में फिनिश कर दो. देन एज द डे पासिस बाय यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर कंफर्टेबल. कभी कभी क्या होता है कि शाम वाला काम नहीं होता है, स्टिल यू विल फील रिलैक्स कि जो मेरे मेन टास्क थे वो मैंने कवर कर दिए, जो थोड़े से अनइम्पोर्टेंट टास्क थे उसको मैं नेक्स्ट डे कवर कर लूंगा. बट जैसे कि एग्जाम में होता है, बच्चा क्या करता है, जो मुश्किल क्वेश्चन होता है उसको लास्ट में अटेम्प्ट करता है, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, मुश्किल वाले को पहले लेके बैठ जाते हैं, तो फिर वो उसको अटेम्प्ट ठीक से नहीं करते, तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है. तो ये एग्जाम अटेम्प्ट करना और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, ये भी अपने आप में आर्ट है, जिसको बच्चों को सीखना बहुत जरूरी है. और आजकल तो ऐसा ट्रेंड है कि पहले पेरेंट्स को सीखना पड़ेगा, फिर पेरेंट्स उसको बच्चों को सिखाएंगे. I think also self review at the end of the week. एक self review भी खुद बच्चे को भी करना चाहिए एंड पेरेंट को भी फॉलो अप करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि मम्मी पापा ने छोड़ दिया मुझे एंड यू नो मैं खुद ही अपना टाइम टेबल भी बना रहा हूँ, मैं खुद ही अपना रिव्यू भी कर रहा हूँ. सो एक फॉलो अप, एक बैकअप होना चाहिए जहाँ बच्चे अपने आप को यू नो रिस्पॉन्सिबल समझे कि नहीं मुझे ये कंप्लीट करना है, और अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, एक पर्सन समवन इज देयर टू आस्क मी, तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है. Yes. I'm fully agree with Shimona. इसमें ये है कि हम किस पेरेंट्स में मम्मी को या पापा को अपना एक्नॉलेजमेंट पार्टनर बना सकते हैं. जैसे
सपोज मैं 2 बजे तक अब पढ़ चुकी हूँ, तो नाउ आई वांट कि 1 आवर का नैप मुझे लेना है, तो आई विल इन्फॉर्म माई मदर कि मुझे आप 3 बजे उठा देना। सो दिस वे उन्होंने आपको उठा दिया, तो आपका जो रिमेनिंग टाइम टेबल है वो वर्कआउट करेगा। एंड सेकेंड थिंग, आपने ऑफ कोर्स टाइम टेबल की तरह ही एक चार्ट बना लिया जिसमें आपने सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स मेंशन कर लिए कि ये टॉपिक्स मेरे कवर हो जाने हैं। तो इन द एंड ऑफ द डे यू कैन आस्क योर मदर टू चेक, और उसमें आप टिक 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 कर सकते हैं, मदर या फादर जिनसे भी आपका है मोर बॉन्ड, तो आप टिक कर सकते हैं। तो एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि यस, मेरी आज का दिन जो मेरी प्रिपरेशन है वो कितना फ्रूटफुल रह गया। यस, अब मैं इस पॉडकास्ट के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर आता हूँ। यस, मैं आपसे पूछता हूँ पायल मैम कि आप क्या टिप्स ऑफर करना चाहेंगे बच्चों को अपार्ट फ्रॉम द टाइम मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग, जिससे कि वो एग्जाम स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज कर सके? क्या करना चाहिए? मैं ज़्यादातर सजेस्ट करती हूँ प्राणायाम, जिसको बच्चे मतलब थोड़ा सा लाइटली लेते हैं, लेकिन ये हम इवन बिफोर द सेशन, कई बार होता है कि आप थ्रू आउट द डे बहुत टायर्ड हो गए, आपने सेशन लिया, तो भी ये बड़ों के लिए भी है। भ्रामरी प्राणायाम इज़ वेरी इफेक्टिव। उसमें क्या है कि अगर माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या कुछ डिप्रेस फील कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, भ्रामरी प्राणायाम इफ़ यू से, मैं करके भी दिखा सकती हूँ। बहुत इजी है, सिंपली अपने ईयर लोब्स को क्लोज करके ये इस टाइप से आपने किया और हमिंग साउंड निकाल लिया इस टाइप से, पूरी ब्रीद इन किया, देन ब्रीद आउट करते हुए ओम, मतलब मुंह में ओम नहीं, मतलब करते हुए आपने बाहर अपनी ब्रीद को एक्सेल करना है। तो उसमें क्या होगा, कुछ भी अगर आप एंशियस हैं, कुछ भी हैं, तो फिर वो सारा ना बहुत जल्दी कामनेस आती है। सेकेंड थिंग, ठंडे पानी से फेस वॉश। इफ़ यू फील लाइक कि अब कुछ मेरे दिमाग में नहीं जा रहा है, अब मेरा बहुत सारा सब्जेक्ट बचा हुआ है जो मुझे लर्न करना है, तो आप चिल्ड वाटर से अपना फेस वॉश कीजिए आराम से, देन कम एंड सिट विद योर बुक्स एंड ऑल नोट्स। आप फिर से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, यू विल फील लाइक कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। देन आईज बहुत स्ट्रेन हो जाती है पढ़ते पढ़ते, तो यू कैन डू, आप बैठें और लेफ़्ट राइट लेफ़्ट ऐसे आई मूवमेंट आपने किया, तो उससे भी आपकी आईज काफ़ी रिलैक्स हो जाती हैं। तो दीज आर स्मॉल टिप्स जो आप बैठे बैठे कर सकते हैं। शोल्डर मूवमेंट्स, क्योंकि स्ट्रेस आपके नेक पार्ट को काफ़ी डिस्टर्ब करता है, तो आप अपने पेरेंट्स से कह के इधर मसाज भी करा सकते हैं, हल्का सा हेड। सो दिस वे यू विल फील रिलैक्स। ये तो हो गया बॉडीली जो हम सजेस्ट करते हैं। सेकेंड, आई सजेस्ट दैट जब बच्चे, मैंने बताया आजकल एक ट्रेंड है कि दे यूज टू सिट लेट नाइट, मतलब पूरी रात भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन एग्जाम्स आपके मॉर्निंग में होते हैं, मॉर्निंग में एग्जाम है। सो आई वॉज हैविंग वन चाइल्ड जिसका एंट्रेंस एग्जाम था, उसने थ्रू आउट जो उसका पढ़ने का प्रैक्टिस था कि रात को पढ़ना दिन में, तो वो जब मॉर्निंग में एग्जाम देने गया, हिज माइंड वॉज नॉट एक्टिव। तो जो स्पीड होनी चाहिए थी एग्जाम की, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम लिमिट था, वो उस टाइप से उसको डील नहीं कर पाया, बिकॉज माइंड एक्टिव नहीं था उस समय इतना ज़्यादा। उसका स्टडी रूटीन इस टाइप से था कि दिन में सोना, रात को पढ़ना। सो एवरी चाइल्ड नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका भी कुछ इस टाइप से रूटीन है, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या मॉक एग्जाम्स जो होते हैं, यू नीड टू गिव एग्जैक्टली एट दैट टाइम जो आपका एग्जाम टाइम शेड्यूल है। सपोज आपका कल 10 बजे एग्जाम होने वाला है मॉर्निंग में, सो इट्स बेटर कि 1-2 दिन पहले आप 1 या 2 मॉक एग्जाम पहले उस टाइम पे दीजिए, एंड वेयरिंग द सेम यूनिफॉर्म। उससे क्या होगा, यू विल फील कंफर्टेबल कि आपको पता चल जाएगा, आप जो एग्ज़ाम का जो आपका हॉल होगा उसके एटमॉस्फेयर से आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। लाइक राइट नाउ इन दिल्ली इट्स वेरी कोल्ड, ठीक है। इस समय अगर बच्चे का एग्ज़ाम है, उसने मॉक एग्ज़ाम दिया, उस समय तो घर पे आपका हीटर भी है, आपने बहुत अच्छे जैकेट्स वगैरह भी पहने हैं, बट एग्ज़ाम्स लिखते वक्त वॉट एवर थिंग्स यू वॉन्ट कि आप कंफर्टेबल होंगे, वैसा सेम यूनिफॉर्म पहन के, सेम एनवायरनमेंट, नो हीटर नो एसी, आप वैसे बैठ के एग्ज़ाम दो, देन यू विल फील कि कितना आप अप्रोप्रिएटली कर पाते हैं। आप 2 या 3 मॉक इस टाइप से देंगे, देन फिजिकली मेंटली यू विल बी एबल टू राइट द एग्ज़ाम इन द वे जो आप एग्ज़ाम हॉल में देने वाले हैं। ये 2 हो गया एग्ज़ाम राइटिंग, और एक आपका जो प्राणायाम्स मैंने डिस्कस किया। देन
while writing the exam आप कई बार सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, मतलब आप पेपर आया और यू फील लाइक कि मतलब अब क्या, मतलब आई एम नॉट एबल टू. सो फॉर दैट मैटर यू हम सब प्रे करते हैं, सबके धर्म अलग हो सकते हैं लेकिन भगवान सबके हैं, ठीक है. तो जो भी एनर्जी जिनको भी आप मानते हैं, सो ऑलवेज फील लाइक कि वो आपके साथ हैं. आप जिस नाम से उन्हें बुलाते हैं आप महसूस करें कि वो आपके साथ हैं, और वाइल राइटिंग द एग्जाम आप महसूस करें कि वो मेरे साथ हैं एंड आई हैव टू राइट द एग्जाम. वो मेरे साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं. विद दिस पॉजिटिविटी, with this mindset, when you will write the exam, then definitely no negative thought comes in your mind. और वो एनर्जी, वो एंथुजियाज्म जब आपके अंदर रहता है तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आई फॉरगॉट द आंसर, या मैं आंसर ठीक से फ्रेम नहीं कर पा रहा, या सेल्फ डाउट तो बिल्कुल नहीं होगा. So these are the small, I mean say tip and tricks जो मैं ज़रूर बच्चों को बताती हूँ. यस मैम, आप बताइए आपका क्या ओपिनियन है, क्या आप टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को जिससे कि वो स्ट्रेस को अच्छे से कोप अप कर सकें अपार्ट फ्रॉम द टाइम मैनेजमेंट? यस, सो पायल जी ने बहुत ही अच्छे टिप्स दिए. टू ऐड ऑन इट आई से कि जब बच्चा पढ़ने बैठता है, आई थिंक उसे एक एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, अ प्रॉपर डेस्क, अ प्रॉपर चेयर, जिसपे जहाँ पे वो रोज बैठे और पढ़ाई करे. ही शुड हैव द सेम एनवायरनमेंट एवरी डे टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस. दूसरा मैं बोलूँगी कि पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, दादा दादी जो भी घर में साथ में रहते हैं, दे हैव टू ऑल्सो रिस्पेक्ट कि बच्चा पढ़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम जोर से टीवी लगा के बैठे हैं, because that is a distraction for your child. You have to respect कि बच्चा पढ़ रहा है तो उससे concentrate करने दे, ना कि बीच में आके उसे बुलाए खाना खाने, ये आया है वो आया है. ये सारा distraction है बच्चे के लिए, जो I understand कि as grandparents you have grown up that way, तो आप करते हो, बट ये conversation होना जरूरी है कि respect करो बच्चे के टाइम को और उसे productive बनने दो. ये छोटी चीज है, बट जब बच्चा एक्चुअली उसको फॉलो करता है तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे वो एक ही काम कर रहा है, दैट इज पढ़ाई. वो उसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है और एवरी डे सेम प्लेस, सो ही नोज दैट एनर्जी, ही और शी हैज दैट एनर्जी, दैट ऑरा कि दिस इज माई प्लेस ऑफ स्टडी एंड आई एम गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट इन स्टडी ओनली. आई डोंट डू एनी अदर थिंग हियर, आई डोंट ईट हियर, मैं और कुछ नहीं करता, बस पढ़ाई. सो ही इज इन दैट माइंडसेट. उस माइंडसेट के साथ जब पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी आती है. अनदर थिंग, बहुत अच्छा मैम ने प्राणायाम बताया. बहुत सिंपल चीज़ है. बहुत से बच्चे मेडिटेशन नहीं कर पाते या कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उनके लिए डिफिकल्ट होता है. हम बोलते हैं कि मेडिटेशन करो, योगा करो, बट हर बच्चा वैसा नहीं होता है जो एक जगह पे बैठ के कर सकता है. सो आई विल से सबसे सिंपल चीज़, अगर कुछ भी ना कर पा रहा है तो बच्चा जस्ट अपनी आंख बंद करके अपने ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट करे. ब्रीद इन, लॉन्ग ब्रीद आउट एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द ब्रेथ. उससे क्या होता है, बच्चे का फोकस और कंसंट्रेशन वापस आ जाता है टू वेयर ही वाज. जो अलग अलग थॉट्स माइंड में होते हैं या कभी कभी भटक जाते हैं कि मेरे दोस्त क्या कर रहा होगा, आज मुझे यहाँ जाना है, कल मेरा ये है, फोन पे क्या मैसेज आया होगा, बहुत सारे थॉट्स होते हैं और वो डाइवर्ट हो जाते हैं. तो टू ब्रिंग बैक, जस्ट आस्क देम टू क्लोज देयर आईज एंड कुछ सेकंड्स के लिए, पहले शायद डिफिकल्ट हो, पर जब ये चीज रोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली वो टाइम अपने आप बढ़ जाएगा एंड दे विल स्टार्ट फीलिंग मोर कामर एंड फोकस एंड कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा एंड मन भी लगेगा पढ़ाई में. सो दिस इज समथिंग आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टू डू एंड it has worked. So please do try. I'll ask everyone to do and try it. It works wonders. And third, I think positive self-talk भी उतना ही important है कि telling yourself every day that I am confident, I am prepared and I am ready for my exam. Positive affirmations अगर हम बच्चे को देते हैं वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है कि I am capable of facing challenges, I am good at my studies. ऐसे लाइंस अगर रोज अपने आप को बोले, मिरर में देख के अगर सुबह सुबह बोले, तो आई थिंक दैट ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल फॉर द चिल्ड्रन. तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं पर दीज थिंग्स रियली हेल्प. जी डेफिनेटली. Yeah, nicely covered. I have 1 or 2 points here.
कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स दूसरे बच्चे की जब प्रैक्टिस देखते हैं ना, या उनका टाइम टेबल, सपोज किसी XYZ ने कुछ टाइम, मदर ने कोई टाइम टेबल शेयर किया, तो दे यूज टू कंपेयर दैट टाइम टेबल विद देयर चाइल्ड का टाइम टेबल। तो ये स्ट्रिक्टली नो होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की परफॉर्मेंस अलग अलग होती है। आपने एक बार गाइड कर दिया, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट यू आर नॉट सपोज टू कंपेयर कि वो बच्चा इतने घंटे पढ़ रहा है, आप क्यों नहीं इतने घंटे पढ़ रहे हो, या इस टाइप का कोई कंपैरिजन। फर्स्ट। सेकंड थिंग, अगर कोई पास्ट फेलियर है, सो यू आर नॉट सपोज टू रिपीट ऑल दोज लाइन्स कि लास्ट टाइम आपने ऐसे किया था तो आपने इतना स्कोर किया, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे। तो डोंट, क्योंकि अब ना एग्जाम टाइम है, तो यू आर नॉट सपोज टू पॉइंट आउट दोज नेगेटिव थिंग्स, राइट। पास्ट फेलियर्स हो गए या कोई किसी तरीके का कंपैरिजन हो गया, इट विल नॉट इंक्रीज एनीथिंग, इट विल नॉट गिव कॉन्फिडेंस टू द चाइल्ड, ये बल्कि उसकी जो परफॉर्मेंस अच्छी होने वाली है उसको भी लोअर डाउन कर देगा। बच्चा सेल्फ डाउट में चला जाएगा कि वेदर आई एम केपेबल और नॉट। राइट, आप दोनों ने बिल्कुल सही टिप्स दिया। इसी में मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स को पहले टीचर्स के साथ कॉन्वर्जेशन करना होगा और अपने बच्चे का IQ लेवल चेक करना होगा कि कहाँ पर वो एग्जैक्टली स्टैंड करता है। फिर उसके अकॉर्डिंग ही वो उनके लिए रियलिस्टिक टारगेट सेट करे। अगर बहुत ज़्यादा उम्मीदें वो उनसे लगाएंगे तो वो उन उम्मीदों के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे, बिकॉज उनको पता है कि वे कहाँ पर वो स्टैंड करते हैं। बच्चे को भी पता है, पेरेंट्स को भी पता है, बट लेकिन वो जो गैप आ रहा है उस गैप को वो फिल इन नहीं कर सकते और इसीलिए वो पैनिक कर जाते हैं। और दूसरा मेन जो चीज़ है, बच्चे को स्टार्टिंग से ही पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए, और इसमें पेरेंट्स का भी रोल प्ले करता है कि वो अपना डेली होमवर्क स्मूथली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वीकली उनकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। तो वो कॉन्स्टेंटली टीचर के साथ टच में रहें, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में रिपोर्ट लेते रहें। और जब बच्चे को ऐसी हैबिट पड़ जाएगी कि वो कॉन्टिन्यूसली स्टडीज पे फोकस करेगा, तो एग्जाम टाइम के नज़दीक आकर वो पैनिक नहीं करेगा। ये पैनिक वही बच्चे करते हैं जो कि एट द 11th आवर स्टडीज करते हैं कि अभी क्या होगा, 2 मंथ्स रह गए, 60 डेज रह गए, 30 डेज, वो दिन गिनने शुरू कर देते हैं कि इतने सब्जेक्ट हैं और इतने दिन हैं, मैं कैसे कवर करूंगा। जब इस तरह की नेगेटिव वाइब्स आप क्रिएट कर लेते हो तो अल्टीमेटली आपने अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट खुद ही कर दी है। और जो बच्चे शेड्यूल बना के शुरू से ही स्टडीज करते हैं, कभी पैनिक नहीं करते, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज तभी होती है जब आप शुरू से पढ़ते हैं। लास्ट मोमेंट पे आके तो क्या करता है बच्चा, क्रैमिंग करता है, और क्रैमिंग करने से कभी नॉलेज नहीं बढ़ती, मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे क्रैमिंग करते हैं, आप उनसे 2 महीने बाद वो बात पूछिए, वो उसको भूल जाएंगे। इवन दे आर नॉट अवेयर अबाउट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। और मार्क्स कितने हैं, 85, 90। तो इट डज नॉट गारंटी दैट यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट। स्कोरिंग मार्क्स इज जस्ट ए क्राइटेरिया, बट इट डज नॉट एश्योर दैट दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज वेरी मच गुड इन द स्टडीज। तो हो सकता है कि कम मार्क्स वाला बच्चा भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और आगे जाके अपने करियर को अच्छे से लेके जाए। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। और तीसरा, कुछ बच्चे जो है ना, अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों के साथ कि आपने अपने दोस्त से पूछा आपकी तैयारी कितनी हो गई। हो सकता है उसकी तैयारी कम हो, बट वो आपको डिमोरलाइज करने के लिए, क्योंकि आप उसके कॉम्पिटिटर हो, और आपको डिमोरलाइज कर दे, प्रेशराइज कर दे कि मेरी तैयारी पूरी हो गई, अब तो मेरा रिवीजन चल रहा है। और जबकि सच्चाई ये है कि उसकी तैयारी नहीं हुई है। तो बच्चे आपस में कॉन्वर्जेशन करते रहते हैं और दूसरे से कंपेयर करके अपने ऊपर प्रेशर डाल देते हैं, अब मेरा क्या होगा। Why are you comparing yourself to him? ठीक है ना, उसकी अपनी डेस्टिनी है, आपकी अपनी डेस्टिनी है। आप अपने आप को दिन प्रतिदिन इम्प्रूव करते जाएं, अपनी स्किल्स को नर्चर करते जाएं, और जितना ज़्यादा आप अपने आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करेंगे, अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा। हो सकता है रिजल्ट धीरे धीरे आए, बट 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम टाइम आ गया है, सपोज 9 o'clock इन द मॉर्निंग आपका एग्जाम है, 8:30 पे एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए और अपनी बुक्स और नोट्स लेके वहां पे बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं। तो ऐसा करने से कुछ भी मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला है, बल्कि जो कुछ आपने तैयारी की है वो भी आप भूल जाओगे, बिकॉज उससे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आप दूसरे बच्चों से इंटरेक्शन करोगे कि आपने कितने कॉन्सेप्ट तैयार किए, आपने कितने किए, यार मेरा तो 70% सिलेबस तैयार हुआ है,
ठीक है ना, अभी मैं चाहता हूँ कि 70% में से ये कवर हो। तो आप जितना इंटरेक्शन दूसरों से करोगे उतना ज्यादा आप डीमोरलाइज हो जाओगे। अपनी तैयारी कीजिए, एग्जाम सेंटर में जाइए, मेडिटेट करके जाइए, डोंट इंटरेक्ट विद अदर स्टूडेंट्स। बिल्कुल क्लीन स्लेट होके जाइए कि आपको कुछ नहीं आता है, एंड बिलीव इन द गोल, बिकॉज आपने मेहनत किया है। तो डेफिनेटली जब आप लिखना स्टार्ट कर दोगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन है आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। ये कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे एग्जाम में तो आप पैनिक नहीं करोगे। बिलीव इन यूर एबिलिटीज, दूसरों पे फोकस ना करें, कंपैरिजन ना करें, ना किसी से पूछें कि कितना आपने तैयार किया है। ठीक है ना, साइलेंटली अगर आप तैयार होके जाएंगे तो हो सकता है कि आप टॉप कर जाएं और दूसरे को पता भी ना लगे। और जो ज्यादा शोर मचाता है ना तो वो टॉप नहीं करता है, वो दूसरों को डिमोरलाइज करने के लिए ऐसे टैक्टिक्स प्ले करता है। ठीक है ना, तो कंपटीशन भी बच्चों में हेल्दी होना चाहिए। और टीचर्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू है और बहुत सारे बच्चे इसको फेस कर रहे हैं। तो स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टाइम टू टाइम वो कुछ काउंसलर्स को इनवाइट करें और एग्जाम स्ट्रेस को कैसे कोप अप करना है इसके ऊपर वर्कशॉप्स करवाएं, टॉक शोज करवाएं, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करवाएं, जिससे कि बच्चे उनके साथ इंटरेक्शन कर सकें और अपनी क्वेरीज को रिजोल्व करवा सकें। तो अगर ये सब टिप्स को इम्प्लीमेंट किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम स्ट्रेस को बहुत ज्यादा हद तक कोप अप किया जा सकता है। बिल्कुल सर। एक और बात मैं जानना चाहूंगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो स्ट्रेस डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है और वो मतलब बिल्कुल ही दे स्टार्टेड लूजिंग होप कि अब मैं एग्जाम नहीं दे सकता या मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं इस परफॉर्मेंस दे सकूं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या पेरेंट्स को काउंसलर्स की हेल्प लेनी चाहिए, या ऐसी कौन से सर्कमस्टांसिस हैं जब पेरेंट्स को ये रियलाइज हो कि हाँ अब मुझे अपने बच्चे की काउंसलिंग के लिए किसी आउटसाइड कंसल्टेंट की हेल्प लेनी चाहिए? यस सिमोना मैम, प्लीज आप बताइए। सो अगर बहुत परसिस्टेंट सिम्टम्स है, बिहेवियरल सिम्टम्स, या इवन आफ्टर एग्जाम्स अगर आपको दिख रहा है कि बच्चे में विड्रॉवल सिम्टम्स है, उनको स्लीप इश्यूज आ रहे हैं कंटिन्यूसली, या इमोशनल आउटबर्स्ट है, अभी भी चिल्ला रहे हैं, या वो इमोशंस दिख रहे हैं उनके लाउड इमोशंस, या बहुत विड्रॉन है और नहीं बात कर रहे हैं, तो ये एक सिम्टम है कि आपको एक प्रोफेशनल को अप्रोच करना चाहिए। यू शुड, क्योंकि बच्चा इज नॉट स्ट्रेस्ड बाय द एग्जाम, इट इज रीच्ड अ सिचुएशन जहाँ बियॉन्ड एग्जाम हो गया है स्ट्रेस, इट इज रीचिंग अ डिप्रेशन स्टेट। तो वहाँ पे हमें अवेयर होना चाहिए। ऑल्सो अगर यू सी मार्क्स, आपका मार्क्स पहले नॉर्मल आ रहे थे, नॉट नेसेसरी कि हर बच्चे के मार्क्स अच्छे आने वाले, कभी कभी एवरेज भी स्टूडेंट होता है तो एवरेज मार्क्स आ रहे, पर आपको दिख रहा है कि कांस्टेंट डिक्लाइन हो रहा है इवन आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स, बच्चे के मूड्स, बिहेवियर चेंज हो रहा है, फिजिकल हेल्थ भी कभी कभी अफेक्ट होता है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों बच्चे को एक्स एंड पेन्स हो रहा है, एकदम से उनके पेट दुखने लग रहा है, पेट दुख रहा है, बुखार आ रहा है, तो दीज काइंड ऑफ फिजिकल इश्यूज भी अगर आ रहे हैं तो दैट शोज के दे नीड अटेंशन एंड यू नीड टू consult an expert, like a counselor, a psychologist, or anyone who is an expert, a coach, Right. like ma'am, yeah, you can approach us, and it is needed. Otherwise, लेट जितना अर्ली इंटरवेंशन आप करेंगे उतना जल्दी बच्चा रिकवर करेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी एंड इट विल टेक टाइम फॉर द चाइल्ड टू रिकवर। यस मैम, आप बताएं आपका क्या ओपिनियन है? बिल्कुल सही इन्होंने शिमोना मैम ने बोला कि कई बार हम सोचते हैं कि बच्चा नाटक कर रहा है, हाँ, राइट, और ये सोच के भी हम इग्नोर कर देते हैं, बट इट्स नॉट एवरी टाइम। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे की जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं वो पहले की तरह नहीं है, सबसे अच्छा चेक पॉइंट है कि अगर बच्चे की जो डे टू डे एक्टिविटीज थी, पहले बच्चा हंसता था, खाना खा रहा है, स्कूल जा रहा है, आ रहा है, होमवर्क कर, बट नाउ यू आर फीलिंग कि वो जो डे टू डे एक्टिविटीज थी वो अब चेंज हो गई है, बच्चा इज शोइंग सम काइंड ऑफ विड्रॉन, खेलने नहीं जा रहा है या सोशल किसी से बातचीत नहीं कर रहा है,
किसी से भी, चाहे अपने फ्रेंड्स से या पेरेंट्स से भी वो कम बातें कर रहा है, कुछ भी अगर वो किसी भी एक्टिविटी में किसी भी गेस्चर से अगर वो विड्रॉन दिखा रहा है, तो इट शोज कि यस इट्स एन रेड फ्लैग। एंड अगर वो नहीं सो पा रहा है ठीक से, तो यस इट्स रेड फ्लैग, हमें कंसल्ट करना चाहिए। हम लोग एक टैबू की तरह सोचते हैं कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन नहीं, इट्स इफ इट इज कंसर्न जोन, तो डेफिनेटली जैसे हम बुखार खांसी सबके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, देन व्हाट इज़ द बिग डील टू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट, या उनके पास जाने में 4-5 सेशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स नॉर्मल। सबसे पहले तो आई थिंक अगर पेरेंट्स से नहीं कोप अप हो रहा है तो पेरेंट्स को टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करवाना चाहिए बच्चे का। जब 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे तो मे बी, क्योंकि वो उनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन पहले भी कर चुके हैं, तो दे विल बी एबल टू एक्सप्रेस देयर प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ देयर टीचर्स, एंड टीचर्स कैन आइडेंटिफाई एंड डायग्नोज द प्रॉब्लम, एंड देन they can offer them the solution which they can implement in order to overcome the stress. हाँ, अगर टीचर से भी नहीं होता है तो देन देयर इज ए नीड टू कंसल्ट एन आउटसाइड साइकोलॉजिस्ट हु इज वेल वर्स्ड इन हैंडलिंग दीज इश्यूज। क्योंकि जितनी देरी होती है, जैसा कि सिमोना मैम ने कहा कि अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, जितना देरी होती है उसका मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ता है, और एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ जाते हैं फिर वो सरेंडर कर देता है। तो ऐसी स्थिति नहीं आने देनी है, और इसी के लिए ही पेरेंट्स को बहुत अवेयर होने की जरूरत है। चलिए, बहुत अच्छा हमारा कॉन्वर्जेशन हुआ। अब मैं आपसे फाइनल रिमार्क्स जानना चाहूंगा। यस पायल मैम, आप, क्योंकि एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं बच्चों के लिए, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? बट इट विल बी योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स टू दोज स्टूडेंट्स who has the habit of taking the stress whenever their examination are at hand? क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो स्ट्रेस का जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो समझ लीजिए कि मुझे हेल्दी की तरफ, मेरा जो स्टेप्स है, आई नीड टू मूव टूवर्ड्स हेल्दी थिंग्स। चाहे वो मेरी ईटिंग हैबिट है, अगर मुझे मंचिंग करनी है या कुछ खाना है, तो रादर देन ईटिंग चिप्स और गोइंग फॉर मोमोज रोल्स, इन सब से इट्स बेटर टू हैव रोस्टेड मखानास, चनास, मुरमुरास या घर का खाना। यहाँ पेरेंट्स का भी थोड़ा सा रोल है कि वो थोड़ा सा उसको इनोवेटिव वे में प्रेजेंट कर दें, सो दैट बच्चे को अच्छा लगे कि, या बच्चे को लगे कि हाँ मेरे पेरेंट्स मेरी केयर कर रहे हैं, उन्हें एक बॉन्ड सा फील हो। एंड समटाइम चाइल्ड फील कि लाइट चाहिए मुझे, क्योंकि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, थोड़ा लाइटनेस रहेगी बॉडी में, तो इफ़ ही और शी वांट्स, तो आप सूप भी सर्व कर सकते हैं। तो नो डाउट ईटिंग हैबिट, जो उस समय आप खा रहे हैं, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और सेकेंड थिंग कि अगर आपको लगता है मेरे को कुछ याद नहीं हो रहा, या कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, तो आप उसको थोड़ा सा एक स्टोरी फॉर्म में भी लर्न कर सकते हैं। हर आंसर का जो कीवर्ड्स हैं उनको आप मेमोरी एलोकेशन दे सकते हैं। वो सारी टेक्निक्स भी यूज़ की जा सकती है। हम क्यू कार्ड्स बना सकते हैं, कोई फॉर्मूला है कुछ है तो हम उसको अपने जो स्टडी टेबल है उसके ऊपर पेस्ट कर दें, जिससे बार बार जब मैं उसको देखती हूँ तो वो मुझे ऑटोमेटिकली लर्न होता जाता है। हम एक्रोनिम्स बना सकते हैं, निमोनिक्स, जिससे कि जो बड़े बड़े आंसर्स हैं उनको हम इजीली ग्रास्प कर सकें, अच्छे से लर्न हो सकें। और यस, जो वेटेज है, चैप्टर वाइज वेटेज जो होती है, वो भी जाननी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कई बार कुछ चैप्टर्स होते हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं और एक एक दो नंबर के होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ, अब क्योंकि लास्ट मोमेंट है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग, आप इम्पॉर्टेंट को पहले प्रायोरिटाइज कर लें कि कौन सा मेरा वेटेज के हिसाब से, जो सीनियर 10th-12th में, तो वो भी आपको बहुत हेल्प कर देती है कि आपको एक अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाए। लास्ट फ्रॉम मी कि यस, पॉजिटिव एफर्मेशन कि आई एम एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स एंड आई लव टू राइट एग्जाम्स, जिससे वो जो फियर है वो गायब हो जाए। दिस इज फ्रॉम माई साइड। या यस मैम, आप बताएं, व्हाट इज योर सजेशंस फॉर द पेरेंट्स एंड देयर किड्स? मैं बच्चों को ये समझाना चाहती हूँ कि एग्जाम्स उनका पूरा जीवन नहीं है, केवल एक छोटा सा हिस्सा है। ओके, so when you are stressed, don't
मतलब अपने में मत रहो, टॉक टू समवन, इट कैन बी एनीवन इन योर सेफ सर्कल, पेरेंट्स, टीचर्स, यू नो। जब आप एक बार वो वेंट आउट करते हो, ग्रेजुअली आपका स्ट्रेस लेवल नीचे जाता है। उस पॉइंट तक मत पहुंचाओ जहां आप किसी एक्सपर्ट के पास आपको जाना पड़े, प्रोफेशनल को अप्रोच करना पड़े। सेकेंड इज टेक स्मॉल स्टेप्स। पूरे सिलेबस के बारे में मत सोचो, छोटे छोटे स्टेप्स लो पहले से ही, सो दैट बाद में आपको बहुत ओवरवेलमिंग ना लगे, बहुत स्ट्रेस ना हो जाए। थर्ड, आई से प्रैक्टिस योर रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेडिटेशन टेक्निक्स या सिंपल ब्रीदिंग। एज आई सेड, आप देखोगे आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन कैसे वापस आता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, जैसे मैम ने बोला, एफर्मेशंस अपने आप को बोलो, वो कॉन्फिडेंस अपने आप में वापस लाने के लिए। और अपने एफर्ट्स को सेलिब्रेट करिए, ना कि उसके आउटकम्स को। हम सिर्फ आउटकम पे फोकस करते हैं, एफर्ट्स को नहीं एक्नॉलेज करते, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई विल से फॉर द पेरेंट्स, प्लीज बी अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट and avoid comparisons. Create a stress-free environment for your child. Yes. And celebrate their efforts, not their achievements. बिल्कुल So सही वो कहा। बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल And सही for the बात। children, I'd say take one step at a time and avoid overthinking. Trust your preparation and allow yourself to take those small breaks. Remember, exams is just one chapter in this book of life. बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आप दोनों ने। पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि क्लास में जो टॉपर होता है वो एक ही बच्चा होता है, हर किसी का बच्चा टॉप नहीं कर सकता। तो आप प्लीज ये कंपैरिजन करना छोड़ दो। हर बच्चे की अपना स्किल लेवल होता है और हर बच्चे की अपनी डेस्टिनी होती है। कभी कभी एफर्ट्स मैटेरियलाइज होते हैं और कभी कभी एफर्ट्स का आउटपुट नहीं आता। जैसा कि मैम ने कहा कि जो बच्चे ने एफर्ट किए हैं आप उनको सेलिब्रेट करो। अब बच्चा दो बार पैनिक करता है, एक बार तो जब एग्जाम होते हैं और एक जिस दिन रिजल्ट आता है। तो जब रिजल्ट आता है तो कुछ बच्चे सेलिब्रेट करते हैं और कुछ मायूस हो जाते हैं। तो वही एक क्षण होता है जब पेरेंट्स को अपने बच्चे को सपोर्ट करना होता है। आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर कीजिए, वेरिएंस आइडेंटिफाई कीजिए और उन वीक पॉइंट्स पर काम कीजिए, पेशेंस रखिए और उनके साथ मिलके काम कीजिए। तो नेक्स्ट ईयर जो रिजल्ट आएगा ना वो डेफिनेटली बेटर आएगा। और आप करते क्या हो, आप उसको डांटना शुरू कर देते हो, उसके ऊपर प्रेशर डाल देते हो। फिर तो क्या होगा, फिर दोबारा से वो पढ़ना तो शुरू करेगा बट वो अंडर प्रेशर पड़ेगा, तो उससे उसकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। आप ऐसा प्लीज मत करिए। हर बच्चे की अपनी अपनी स्किल लेवल होता है और आप उस बच्चे को पूछिए कि आप क्या बनना चाहते हो, उस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप उसका डोमेन फिक्स करो। हर बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता, ठीक है ना। हर डोमेन अच्छा है बट आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना डोमेन चूज करना होगा। और जितना आप अपने बच्चे को सपोर्ट करेंगे ना, उस बच्चे की ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। कुछ बच्चे स्टडीज में अच्छे नहीं होते, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे अच्छे नहीं हैं, आपको उनको सपोर्ट करना होगा, ठीक है। पढ़ना बहुत जरूरी है बट जैसा कि मैम ने कहा कि ये केवल एक चैप्टर है। मैं एग्जांपल देता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जामिनेशन का, सी एग्जामिनेशन का, कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो फेल हो गए उन्होंने एफर्ट नहीं किए, सभी बच्चे कॉन्स्टेंटली एफर्ट करते हैं बट लेकिन क्या होता है, जो टॉप मोस्ट होते हैं वही क्वालिफाई कर पाते हैं। द सेम इज इन द रिजल्ट ऑफ आईएएस एग्जामिनेशन। तो आप उनसे सीखिए। अभी आप बच्चे को आगे जाके उन स्टेज को क्वालिफाई करना है, अभी आपने उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया है। और बच्चे को भी समझना होगा कि ये एग्जाम जो है ना केवल एक हिस्सा है। दिस इज नॉट द लाइक कि जिंदगी की जंग नहीं है कि आप हार जाओगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक बार नहीं आया तो दूसरी बार आप अच्छा रिजल्ट लेके आओगे, बट आप गलतियों को रेप्लिकेट मत करो, उन गलतियों से सीखो। जब सीखोगे तो नेक्स्ट टाइम आप उनको रेप्लिकेट नहीं करोगे, और अगर आप रेप्लिकेट करते तो इट मीन्स यू आर नॉट ए गुड लर्नर। फिर तो ना कुछ टीचर सपोर्ट कर सकता, ना पेरेंट्स कर सकते, आप सीखना ही नहीं चाहते। और दूसरा, डरना नहीं है, डर को डराना है। इस चीज को आप सीख लो कि डर आपके नजदीक आ गया तो डर को डरा दो कि आप किसी और के पास जाओ, यहाँ पे आपकी दाल नहीं गलने वाली। मुझे पैनिक नहीं होता, मुझे स्ट्रेस नहीं होता, मैं एग्जामिनेशन डेज में भी कंफर्टेबल रहता हूँ। उसके लिए क्या करें, मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, अपनी हॉबीज पे टाइम स्पेंड करें, फैमिली के साथ इंटरेक्शन करें, फ्रेंड्स से बात करें
और कॉन्स्टेंटली रेगुलरली आप स्टडीज ना करें, बीच में फ्रीक्वेंट पीरियोडिकल इंटरवल्स लें, तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आप पढ़ लेते हो, हमारी मेमोरी बहुत लिमिटेड होती है। आज हमने जो याद किया 3 डेज के बाद हम 50% याद रख पाते हैं, ऐसा साइंटिफिक स्टडीज बोलती हैं। तो आप क्या करें, जो कुछ आपने पढ़ा है उसके ब्रीफ नोट्स आप प्रिपेयर कर लें। तो जब आप रिवीजन करोगे तो आपको पूरा उस बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल जो आपने अपने ब्रीफ नोट्स बनाए हैं आप उनको पढ़ें, तो उससे आपका टाइम सेव होगा और आप कॉन्फिडेंटली आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी हमने ये इंटरेक्शन किया है ये पेरेंट्स और किड्स दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू कि आपने इतने अच्छे और बारीक तरीके से इतने अच्छे अच्छे टिप्स दिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पेरेंट्स और उनके बच्चे दोनों इनके ऊपर काम करेंगे और शायद हमारे इस इनिशिएटिव से कुछ बच्चों का स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। और ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम इन बच्चों के लिए कुछ कर सकें। तो इस पॉडकास्ट के जरिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सब प्रैक्टिकल टिप्स को अपनाना शुरू कर दोगे। आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं, धीरे धीरे आप इन पे काम करना शुरू कर दें, और मेडिटेशन को कभी ना भूलें। जिंदगी में अपना लेंगे तो बहुत जल्दी आपकी एफिशिएंसी लेवल इंप्रूव हो जाएगा। Thank you so much once again, Payal ma'am and Simona ma'am. Thank you so much for sparing you. your invaluable time. It was really an engaging podcast and healthy conversation. And I am hopeful that it is going to benefit a lot of kids who are going to appear in their exams in the time to come. Thank you so much to all the listeners. Thank you, sir. And if you have any feedback about this podcast, please do not hesitate to write your feedback in the comment section. Your comments do motivate us. I will see you soon with a new podcast and with a new topic. Till then, stay safe and do take good care of yourself and your kids. Thank you so much once again. Thank you, ma'am. Thank you, sir. sir.